to find out the quantity of murum filling. We have seen the quantity of murum filling or boulder filling or the quantity of PCC depending upon the section. And we have already seen in previous lecture the most important is how to find out the quantity of flooring, and how to find out the quantity of flooring. ठीक है ना? तो flooring की quantities we have already seen in previous lectures. Nowadays, in today's lecture, we will see some more different quantities to be calculated, some different things to be calculated. Depending upon this, we will find out the different things. Most important is we will find out the PCC, that is which has been given here. PCC or UCR first step, second step. These are the usual calculations which we have already covered in previous lectures. So in today's lectures, we will find out the plain filling. Most important is the plain filling. We will find out the quantity of plain filling. Next important is we will find out the quantity of mosaic tile flooring, and also we will find out the quantity of DPC. The quantity of DPC. ठीक है ना? Here the quantity of DPC is also given. That is damp proof course. Here you can see an arrow with the help of that arrow. It has been indicated that below the wall there is a layer which has been provided, which is having a small thickness. It may be of 25 mm or 30 or 50 mm. So a small thickness is there, and it has been DPC, that is damp proof course. Okay. So what is the use of this damp proof course? Is anyone having idea about this? What is the use of this DPC which has been laid below the wall? Yes. सर वाटर सीपेज को रोकने के लिए सर. Yes, it has been used to in order to avoid the flow of water, है ना? जो पानी जो है अपना जो ऊपर नहीं आ रहा है उसके लिए this DPC layer it has been provided, ठीक है ना? Damp proof course. The name itself indicates, है ना? Damp proof course. DPC. ठीक है? In order to avoid the dampness, this DPC layer it has been provided, but it will be dependent and it will be provided as per the section. ठीक है ना? In some cases ये जो आप section में देखो, आप section का बहुत important है. I am always saying that while finding out the quantities, you have to properly see the section. ठीक है? अब यहाँ पे DPC जो है, it has been laid at second step UCR. सेकेंड स्टेप यूसीआर दिख रहा है यहाँ पे. सेकेंड स्टेप यूसीआर जिसका विड्थ है 500 mm. ठीक है? तो 500 mm की विड्थ में डीपीसी इट हैज बीन लेड. दैट मींस जो यूसीआर का जो सेकेंड स्टेप था वही विड्थ का सेम विड्थ में डीपीसी इट हैज बीन लेड. बट इन सम केसेस ठीक है, जितना अपने पास विड्थ ऑफ वॉल होगा उतना ही डीपीसी भी इन सम सेक्शंस इट हैज बीन गिवन. दैट मींस 300 के विड्थ में भी डीपीसी वी कैन ले डाउन द डीपीसी एट अ विड्थ ऑफ 300 mm, और वी कैन हैव अ डीपीसी एट द सेम. ठीक है ना? जो ये पूरा दिख रहा है वो पूरा का पूरा भी ले सकते हैं आप, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, या फिर जैसा सेक्शन में गिवन रहेगा. डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शंस वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ डीपीसी. ठीक है ना? तो यहाँ पे जो डीपीसी है वो पूरा का पूरा विड्थ जो है वो 500 mm है. ठीक है? तो आज के प्रॉब्लम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वी विल फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ डीपीसी. ठीक है? बिफोर दैट वी हैव टू फाइंड आउट और वी हैव टू ड्रॉ अ सेंटर लाइन प्लान. ठीक है ना? सबसे पहले काम क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द और वी हैव टू ड्रॉ अ सेंटर लाइन प्लान. तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ सेंटर लाइन प्लान. व्हाट इज द वॉल थिकनेस इन दिस फिगर व्हिच हैज बीन गिवन? ये फिगर में वॉल थिकनेस कितना है? 0.3 meter. 0.3 meter. 0.3 meters. The wall thickness in this figure, it has been given in this section, it has been given as 300 mm brick masonry wall. So that is 0.3 meters which has been given. That means all the walls it is having a same thickness. ठीक है ना? जैसा किचन है, बेडरूम है, लिविंग रूम है, it is having the same thickness throughout the section. मतलब पूरा का पूरा जो है along x and y directions the thickness of wall is same. अब सम केसेस में जैसे फील्ड में होता है, अक्सर में एग्जीक्यूशंस में होता है कि इंटरनल पार्टीशन वॉल इट इज हैविंग अ स्मॉलर थिकनेस, वेयरएज एक्सटर्नल जो वॉल्स रहते हैं वो ज्यादा थिकनेस के होते हैं. बट दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द सेक्शन. अगर एक ही सेक्शन है, क्या मतलब है कि ये ऑल द वॉल्स वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल्स इट हैज बीन मेड अप ऑफ 13 mm थिक. ठीक है ना? इट इज हैविंग अ थिकनेस ऑफ 300 mm. ठीक है? तो अब उसी 300 mm से वी विल फाइंड आउट द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ किचन रूम, बेडरूम एंड लिविंग रूम. अब किचन रूम का एक्स डायरेक्शन का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखो,
what is in x directions, तो here the length of this kitchen room is 3 meters, 3 meters है. अब 3 meters होगा, दिख रहा है यहाँ पे 3 meters, तो 3 plus 0.15 half the wall width left side, half the wall width right side, तो 3 plus 0.15 plus 0.15 कितना होगा? Yes, 3.3. यस 3.3. तो किचन का लेंथ वाइज जो है एक्स डायरेक्शन में इट इज 3.3. ठीक है. वेरएज बेडरूम का यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फॉर दिस बेडरूम इज अगेन 3.2 इज द लेंथ अलोंग एक्स डायरेक्शंस. ठीक है ना, लेंथ जो है बेडरूम का 3.2 है. अगेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा लेफ्ट साइड 0.15, राइट साइड 0.15, तो 3.2 प्लस 0.15 प्लस 0.15 इट कम्स टू बी 3.5. 3.5. 3.5. ठीक है. अब नीचे में भी देख लो एक बार, नीचे में भी एक लेंथ है. ठीक है, 4.6 एक है. ठीक है ना, तो 4.6 का अगेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा लिविंग रूम का, यहाँ पे भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4.6, तो 4.6 प्लस 0.15 प्लस 0.15 इट कम्स टू बी 4.9. 4.9. 4.9. ठीक है. अब y डायरेक्शंस में एक एक का लेंगे अपन. किचन और बेडरूम एक ही y डायरेक्शंस में है. ठीक है ना, ये ऊपर में अगर मैं y डायरेक्शंस में लेता हूँ तो दोनों का विड्थ जो है किचन रूम का भी विड्थ और बेडरूम का भी विड्थ दोनों का भी 3.3 है. तो 3.3 प्लस टॉप साइड जो हाफ विड्थ ऑफ वॉल रहेगा यहाँ पे 0.15 और नीचे में भी 0.15 रहेगा, तो 3.3 प्लस 0.15 प्लस 0.15 इट कम्स टू बी 3.6. 6. ओके. नेक्स्ट अगेन दिस 3.3 सेम ही है, लिविंग रूम का भी विड्थ सेम है, तो ये भी क्या बन जाएगा 3.6. मतलब ये दोनों का भी वेदर इट इज किचन रूम और लिविंग रूम, ये दोनों का जो है वाई डायरेक्शंस में 3.6 दोनों के लिए सेम है. ठीक है. अब ये डिसाइड करना है कि आउट ऑफ दिस एक्स एंड वाई डायरेक्शन में जितने वॉल्स है, तो इन विच डायरेक्शन वी विल टेक एज द लॉन्ग वॉल एंड विच इन विच डायरेक्शंस वी विल टेक एज अ शॉर्ट वॉल. ठीक है. तो एनी आइडियाज रिलेटेड विद दिस? यस, लॉन्ग वॉल कौन से डायरेक्शंस में होगा, शॉर्ट वॉल कौन से डायरेक्शन में होगा? सर लॉन्ग वॉल एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन में. एक्स डायरेक्शन में रहेगा लॉन्ग वॉल और वाई Yes. डायरेक्शन में शॉर्ट वॉल. यस, वाई एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगा, इट इज लॉन्ग वॉल. बिकॉज देखो कंटिन्यूअस लेंथ में देखो जो ऊपर में दिख रही किचन और बेडरूम के जो लाइन अगर ड्रॉ होती है तो एक स्ट्रेट वॉल है. ठीक है, और उसके बाद में भी स्ट्रेट वॉल है. दैट मींस 2 स्ट्रेट वॉल्स आर देयर, और इसका एडिशन जो है इट इज लिटिल बिट स्मॉलर है वाई डायरेक्शन के कंपेयर्ड में. मगर कैसा है कि कंटिन्यूअस जो लेंथ है वो ज्यादा एक्स डायरेक्शन में है. तो 1 2 और ये एक जो लिविंग रूम की जो रहेगी एक्स डायरेक्शन में भी ये कंटिन्यूअस लेंथ बन जाएगी. तो ऐसा एक्स डायरेक्शन में वी आर हैविंग कंटिन्यूअस लेंथ में 3 नंबर्स. वेरएज वाई डायरेक्शन में देखो, अगर ये किचन रूम और लिविंग रूम का अगर वाई डायरेक्शन में देखते हैं आप, तो एक ही है, बाकी ये डिवीजन से, ये एक डिवीजन थोड़ा सा एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक डिवीजन अलग हो रहा है, ये एक डिवीजन अलग हो रहा है. तो वी विल कंसिडर वाई डायरेक्शन एज शॉर्ट वॉल एंड एक्स डायरेक्शन एज लॉन्ग वॉल. ठीक है. तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस. Any doubts related with this? Why we have taken X Yes, direction sir. as short wall and Y direction as short wall? इसमें कोई confusion तो नहीं है किसी को? ठीक है. ये एक स्मॉल फिगर अपन ने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वाली जो फिगर है वी हैव ड्रॉन, वी हैव टेकन दिस. अब ये दोनों को क्लब करके वी विल हैव अ कंबाइंड लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल. ठीक है ना, क्लब कर लो. है ना, एक ही लाइन में था तो इसको क्लब कर दिए. तो ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तक वी विल कॉल दिस एज L1. ठीक है. और नीचे में जो लिविंग रूम का जो था 4.6 प्लस जो आपने लिए थे 3, दैट इज 4.9 वाला जो था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस L2 वाला, तो दिस वी विल कंसीडर दिस एज L2. ठीक है. तो पहले एक्स डायरेक्शन के पूरे नेम्स दे दो. तो ये एक्स डायरेक्शन में दो ही L1 ये दो है पैरेलल में, और L2 एक अलग लेंथ का था, इसका नाम दे दिया अपन ने L2. ऐसा S1 क्या भी निकाले थे 3.6. ठीक है ना, तो 3.3 था प्लस 0.15 प्लस 0.15 इज 3.6. यहाँ पे डायमेंशंस गिवन नहीं है. ठीक है ना, तो 3.6 बट 3.6 S1 तीनों का सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि तीनों भी 3.6 ही है. तो यहाँ पे ये भी 3.6 हो गया, ये भी 3.6 हो गया, 3.6 हो गया, तो सबका नाम एक ही हो रहा है, दैट इज S1. ठीक है. अगर 3.7 और 3.8 ऐसा कुछ होता है तो S2 होता था, बट हियर ऑल द लेंथ इज सेम 3.6. शॉर्ट वॉल की सबकी लेंथ सेम है, देयरफॉर वी हैव गिवन द नेम एज S1. ठीक है. So here there are 2 numbers of L1 and 1 numbers of L2, whereas S1 कितने numbers है 1 2 3 4 and 5. ठीक है. There are 5 numbers of S1, 5 numbers of S1. ठीक है. Find out the total center to center distance. Find out the total center to center distance for this case.
सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बताओ कितना रहेगा, पहले L1 बता दो मेरे पास, टोटल L1 कितना रहेगा। L1 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 6.8. L1 is 6.8 meters, सबका बराबर है। 6.8 कैसा आया है? Any confusion regarding this? How this length of L1 it has been calculated? सबको समझ में आ रहा है? Yes, 6.8 L1 कैसा आया? नोमान, पीयूष, सुषमा, यस, योगेश, आवाज आ रही है मेरी? अमान, अमान का है? Yes, sir. 6.8 L1 कैलकुलेशन बराबर है। Only 2 to 3 students are responding. What about the rest of students? Whether they are sleeping? Yes, Yogesh, Sushma, Sumera, Shubham, श्रेयस प्रेजेंट है नहीं है? ये ऑन करके चले गए सब? है सर। है? है सर। यस सर, समझ में आ गया। हाँ, है सर। यस सर। L1 लेंथ 6.8 समझ में आया सबको? हाउ दिस 6.8 लेंथ इट हैज बीन कैलकुलेटेड। L1 6.8 कैसा आया? ये ऊपर में देखो L1 लिखा मैंने, सिर्फ एडिशन किया आपने, सेंटर टू सेंटर निकाले थे, उसका L1 निकल गया, ठीक है ना, 6.8। यस सर। अब से L2 तो कोई एडिशन नहीं है तो मैं लिख लेता हूँ, बट इट हैज बीन यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। तो L2 कितना था? 4.9 4.9. 4.9. because it has been used for calculations, so we will write down as L1 as 6.8 and L2 as 4.9 meters, ठीक है ना। ये दोनों चीजें मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब S1 तो इसमें कितना था? S1 की डिस्टेंस कितना था? 3 पॉइंट। S1 भी यूज होता है 3.6. 3.6। 3.6. तो S1 is 3.6 meters, 3.6 meters, ठीक है। तो S1 is 3.6 meters. So in this way we have find out what is the total center to center distance। निकालो, बताओ तो टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना आएगा? यस, टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करो। 36.5. 36.5. 36.5। Okay, 36.5 is the total center to center distance, ठीक है ना। 36.5 total center to center distance is 36.5। yes, here we have calculated this। यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे टोटल सेंटर टू सेंटर, ये ऑफसेट वाला मत पढ़ो, यहाँ पे लिखा है टोटल सेंटर डिस्टेंस एज 2L1 plus 1L2 plus 5 times S1। तो ऐसा अगर मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे आप तो द डिस्टेंस इट कम्स टू बी 36.5 meters, ठीक है। तो here we have calculated the total center to center distance as 36.5 meters। हाँ बोलिए सर L1 तो एक ही है ना सर, पास उत्तर लंबा। L1 नहीं, देखो L1 कितने हैं फिगर्स में? L1 नंबर्स कितने हैं? एक ही तो। How many numbers of L1 is there? सर दो नंबर कैसे आएंगे सर? ये ऊपर में देखो, मेरा कर्सर दिख रहा है ऊपर में, हाँ सर। ये एक L1 है। हाँ उसके बाद देखो ये क्या है? हाँ ओके हाँ, ये दूसरा, हाँ ओके सर। ये है दूसरा L1 और ये है L2, ठीक है। तो कितने नंबर्स हो गए L1 के? 2 नंबर्स हो गए। L2 के कितने नंबर्स हो गए? 1 नंबर्स हो गए। S1 के नंबर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 and 5, ठीक है। तो 5 numbers of S1 is there। So just we have multiplied this all quantities। So 2 into 6.8 plus 1 into 4.9 plus 5 into 3.6, the calculation it comes to be 36.5 meters, ठीक है। Is that clear? 36.5 meters। यस सर। यस सर।
नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट है अपने पास, वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ प्लिंथ फिलिंग, ठीक है ना, जो अपने पास प्रीवियस में भी निकाले थे, फिर से वही चीज अपन फिर से रिपीट करते हो. Whether you have understood the quantities of earthwork in excavations and PCC also, पिछले प्रॉब्लम्स में अपन ने करे थे, वो सब क्वांटिटी समझ में आया सबको. हाउ टू फाइंड आउट द earthwork in excavations and PCC, ये जो नीचे दिख रहा है 900 का, वो PCC प्लस UCR फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, ये अपन ने प्रीवियस के 3-4 प्रॉब्लम्स में वी हैव फाइंड आउट. ये रिपीट करना है या फिर नेक्स्ट कैलकुलेशंस करना है, ठीक है, क्योंकि बार बार वही चीज आ रही है. So whether it is to be repeated or whether we have to take some different quantities, calculations में दूसरे quantities calculate करना है या फिर repeat करना है, आपको बताओ. आपको मालूम है सबको earthwork in excavations कैसे निकालते हैं? Yes, sir. है ना, earthwork in Yes, sir. excavations निकाले थे अपन ने सर UCR, उसके बाद फिर उसी से बेस्ड अपन ने PCC निकाले थे. बहुत सिंपल रहता है, PCC में सिर्फ थिकनेस चेंज होती है, PCC भी निकल जाता है. तो उसके उसी से बेस पे वी हैव फाइंड आउट द UCR फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, ठीक है ना. UCR फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप भी हमने निकाले थे उसमें से, उसी के बेस से, ठीक है. तो आज के प्रॉब्लम में वी विल फाइंड आउट द इम्पोर्टेंट इज प्लिंथ फिलिंग. ऑलरेडी ये भी कैलकुलेशंस हो गए थे पिछले बार में, बट और एक बार में वी विल फाइंड आउट द क्वांटिटीज ऑफ प्लिंथ फिलिंग, ठीक है ना. प्लिंथ फिलिंग निकालेंगे आप. प्लिंथ फिलिंग प्लिंथ फिलिंग थोड़ा सा कैसा है कि कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, इसलिए मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ. और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अपन ज़्यादा ले रहे हैं प्लिंथ फिलिंग और मोरू फिलिंग के लिए, ठीक है ना. ऑफसेट वाला कंसर्न थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझने के लिए, इसलिए वी हैव टेकन दिस, ठीक है. तो प्लिंथ फिलिंग का व्हाट इज द थिकनेस फॉर प्लिंथ फिलिंग. प्लिंथ फिलिंग का थिकनेस कितना है, देखो सेक्शन में गिवन है. ये थोड़ा सा रीड हो रहा है क्या आपको? कितना है प्लिंथ फिलिंग बताओ. 650 mm है ना. प्लिंथ फिलिंग का थिकनेस इज 650. 650. व्हाट अबाउट द ऑफसेट रिक्वायर्ड. अब ये कैसा है देखो, प्लिंथ फिलिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्लिंथ फिलिंग. और एक्चुअल में मेरा वॉल जो है, रूम डायमेंशंस वाला वॉल जो है, वो ये फेस है, उसका फेस यहाँ पे. रूम डायमेंशन जो दिखता है ना 3x3 या फिर 3.2x3 ये जो है वो रूम डायमेंशंस, ये जो है ये वॉल यहाँ से स्टार्ट हो रही है. बट एक्चुअल में प्लिंथ फिलिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना. तो इट इज हैविंग सम डिफरेंस इन कैलकुलेशंस. ऑफसेट है यहाँ पे, तो वो ऑफसेट कैसे निकालेंगे. तो नीचे का UCR सेकंड स्टेप इज 500, ऊपर का जो है 300 है. तो 500 माइनस 300 कितना होगा? 500 माइनस 300 200. 200. अब 200 200 यस 200 क्या करो, इक्वली डिवाइड करो, है ना, इंटरनल वॉल्स के लिए और एक्सटर्नल वॉल्स के लिए. बट मैं इंटरनल ही कंसिडर करूंगा क्योंकि मेरे पास इंटरनल डायमेंशंस गिवन है और मैं फिलिंग इंटरनल करूंगा. आप जब भी फिलिंग करते हैं तो घर के अंदर में फिलिंग होती है, घर के बाहर में फिलिंग होती है क्या? बाहर में तो रोड होगा, बाहर में तो अपना जो भी रहेगा, है ना. तो अंदर फिलिंग में करेंगे आप, रूम के अंदर फिलिंग होगी. बट ऑफसेट में डिवाइड करते वक्त दोनों तरफ बता रहे हैं, दोनों तरफ ऑफसेट हो रहा है ना. यहाँ पे एक एरो दिख रहा है DPC का और यहाँ पे एक एरो दिख रहा है UCR फिलिंग का, है ना. मतलब दोनों तरफ क्या हो रही है, फिलिंग हो रही है. बट मेरी कैलकुलेशंस के लिए वी हैव टेकन एज इंटरनल फिलिंग, अंदर की फिलिंग देखेंगे आप. रूम के अंदर जो फिलिंग होती है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाहर में कुछ काम का नहीं है मेरे पास, ठीक है. तो अब मैंने 500 माइनस 300 किया तो 200 आ गया. अगेन डिवाइड किया इक्वली तो डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ गया? 100 mm. 100 mm दैट मीन्स 0.1. तो मेरे लिए काम का क्या है कि 0.1 इज द ऑफसेट ऑफ दिस प्लिंथ फिलिंग फ्रॉम ऑल द साइड्स, सब तरफ से, ठीक है ना. अगर मैं किचन रूम में अगर फिलिंग करता हूँ तो सब तरफ से मेरे को 0.1 ऑन अप साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड हियर नीचे की तरफ में जो रहेगा किचन रूम के ऑल साइड से वी हैव टू लीव अ स्पेस ऑफ 0.1 मीटर्स. 0.1 मीटर्स छोड़ के आपको प्लिंथ फिलिंग करना है. सब तरफ से 0.1 छूटेगा. वो क्यों छूटेगा? बिकॉज दिस सेक्शन इट हैज बीन इंडिकेटेड, ठीक है ना. सेक्शन में ये चीज क्लियर है कि फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ वॉल वी हैव टू लीव अ स्पेस ऑफ 0.1 फॉर प्लिंथ फिलिंग. प्लिंथ फिलिंग के लिए 0.1 सब तरफ से छोड़ना है आपको, ठीक है. अब उसके लिए प्लिंथ फिलिंग के लिए सबसे पहला लूंगा मैं किचन रूम ले लिया. किचन रूम का अगेन लेंथ ऑफ किचन इज इम्पोर्टेंट. लेंथ ऑफ किचन कितना है बताओ, कितना है 3 मीटर माइनस 3 meter. माइनस दोनों तरफ अगर माइनस करूंगा तो कितना होगा? ऑफसेट 0.1 दोनों तरफ माइनस किया तो 0.1 दोनों तरफ माइनस हुआ तो कितना होगा? 2.8. 2.8 2.8.
2.8 मीटर्स, ठीक है ना। तो लेंथ वाइज कितना हो गया 2.8 मीटर्स। वैसा उसी के सेम वे में विड्थ ऑफ दिस किचन, ठीक है ना। तो विड्थ इज इक्वल टू विड्थ ऑफ किचन इज 3.3 माइनस ऑफसेट दोनों तरफ आएगा, है ना। तो कितना आएगा 3.3 में से 2 बार 0.1 माइनस करो, 3.1 3.1 3.1 3.1 मीटर्स, ठीक है। ऐसे कितने नंबर्स हैं? तो देयर इज ओनली वन किचन इज देयर, यू नो, इन दिस प्लान देयर इज वन नंबर्स ऑफ किचन इज प्रेजेंट, ठीक है। 2.8 उसकी लेंथ है, विड्थ उसकी 3.1 है, अभी निकाले आपने। हाइट ऑफ प्लिंथ फिलिंग इज गिवन इन द सेक्शंस, ठीक है। थोड़ा सा आप दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा प्लान में, 650 mm है, ठीक है ना। 650, इट इज नॉट 550, इट इज 650। थोड़ा सा 6 इसका प्रॉपर दिख रहा नहीं होगा आपको, बट इट इज 650, 0.65, ठीक है। कितना आएगा 0.65 करेंगे तो हम 5.642 5.642, ओके। नेक्स्ट इज बेडरूम। अब बेडरूम के लिए भी सेम क्राइटेरिया होगा। सबसे पहले लेंथ ऑफ बेडरूम, लेंथ निकालेंगे उसका। लेंथ ऑफ बेडरूम कितना है? अगेन 3.2 है। आप दोनों तरफ ऑफसेट लेंगे तो कितना होगा -0.1, 3.2 माइनस 0.1 कितना होगा 3 3 3 मीटर्स, है ना। उसी के बेस पे मैं उसी के लाइन में आगे लिखता हूँ विड्थ। विड्थ कितना है अपने पास? विड्थ ऑफ दिस इज 3.3। बेडरूम का विड्थ कितना है 3.3 माइनस 0.1 माइनस 0.1 कितना आएगा 3.1 3.1। इसको नीचे दे देते हैं 3.1 मीटर्स, 3.1 मीटर्स। ऐसे नंबर्स ऑफ बेडरूम इज 1। अभी निकाले उसका लेंथ 3.0 और उसका विड्थ इज 3.1, हाइट इज सेम है 0.65। तो फिर कितना आएगा इसका 6.045 6.045 yes 0.04 6.045। it is measured in cubic meters, so we have to write down the unit as cubic meters, ठीक है। प्लिंथ फिलिंग हो गया। उसके बाद में अब नेक्स्ट इज बेडरूम और लिविंग रूम होगा। लिविंग रूम के लिए अगेन द सेम क्राइटेरिया इज देयर। एल डायरेक्टली लिख लेता हूँ। लेंथ एल इज इक्वल टू, और लेंथ फॉर द लिविंग रूम इज 4.6 माइनस 0.1 माइनस 0.1 कितना आएगा 4.6 में से 0.1 4.4 4.4 4.4 4.4 ओके। विड्थ, अब इसी से बेस्ड में विड्थ भी बता दो। विड्थ डब्ल्यू विड्थ 3.1 3.1 0.1 और 0.1 तो कितना आएगा इसका 3.1 मीटर्स। तो नंबर्स इज 1, जिसका 4.4 इज द लेंथ एंड विड्थ इज 3.1 एंड हाइट इज 0.65। कितना होगा 8.866 8.866 866 866। अगेन इट इज इन cubic meters. We have find out the quantity of plinth filling in kitchens, in bedroom and living room. So find out the total quantity for this. टोटल कितना होगा इसका? एडिशन कर लो इसका। this plus 20.553 20.55 20.533, ठीक है ना। 20.533 is the total quantity, ठीक है। total quantity is 20.533। नेक्स्ट इज वी आर फाइंडिंग आउट डीपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट जो था आज के लेक्चर्स में डीपीसी था, मगर अभी थोड़ा सा टाइम फिर भी वी विल ट्राई टू कवर नेक्स्ट लेक्चर आपका हर सरकार। चलो फास्ट वे में वी विल फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ डीपीसी, ठीक है। अब डीपीसी देखो क्वांटिटीज में विड्थ ऑफ डीपीसी कितना है बताओ। फिगर में डीपीसी कितना है विड्थ? व्हाट इज विड्थ ऑफ डीपीसी? कुछ नहीं विड्थ थिकनेस 50 mm 50 mm 500 mm है, यस 50 सेंटीमीटर्स है। और मीटर्स में अगर देखते हैं तो 0.5 मीटर्स है, ठीक है ना। तो 0.5 मीटर्स इज द विड्थ ऑफ डीपीसी, थिकनेस इज नॉट देयर। So therefore this quantity will be measured in square meters, ठीक है। क्योंकि ये बहुत निग्लिजिबल होता है, फ्लोरिंग के साइज में रहता है ये। जैसा देख रहे होंगे आप यहाँ पे, तो सेक्शन में भी देख रहे होंगे कि मोजाइक टाइल फ्लोरिंग के लाइन में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत कम थिकनेस होता है। therefore it has been as per IS 1200 it has been measured as square meters। DPC it has been measured as square meters, ठीक है ना। क्यूबिक मीटर्स में नहीं रहेगा, स्क्वायर मीटर्स में रहेगा। तो हाइट वाला कॉलम नील आ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। तो नंबर 2 इज डीपीसी। अब
Number 2 is DPC. Important is while finding out the DPC, same procedure is there, है ना. लेंथ भी वैसे निकालेंगे क्योंकि DPC is as good as UCR फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप और PCC जैसा आप निकालते थे, वही प्रोसीजर से आप DPC के लेंथ निकालेंगे. ठीक है, तो मैं वही प्रोसीजर स्टार्ट करूंगा. तो DPC के लिए सबसे पहले L1 रहेगा मेरे पास. L1 कितना है देखो फिगर्स में. L1 कितना था अपने पास 6.8. या फिर मेरे पास फार्मूला क्या है, व्हाट इज द फार्मूला यूज फॉर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड्स में क्या था, सेंटर टू सेंटर Distance of long wall plus width of section. यस, Width सेंटर of टू the सेंटर section. लेंथ प्लस विड्थ ऑफ Width of the सेक्शन. section. ठीक है ना, विड्थ ऑफ सेक्शंस, वही फार्मूला यूज कर रहे हैं. अब एक चीज आपको लगेगा कि अपन कभी ये फार्मूला यूज करते हैं कभी नहीं करते, ऐसा क्यों होता है. ठीक है, तो एक चीज याद रखो, अगर मैं ये फार्मूला लिखता हूँ और यूज करता हूँ दैट इज लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड्स, तो ये फार्मूला कब यूज होगा, जहाँ पे ये सेंटर लाइन, मैं एक थोड़ा सा एक और आपको आइडिया देता हूँ. इसमें थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करके मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस मेथड. ठीक है ना, ये मेथड कहाँ कहाँ पे यूज होगा, कौन से क्वांटिटीज के लिए दिस मेथड विल बी यूज. यस, अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन देखो कैसे ड्रॉ हो रही है, दिख रही है स्ट्रेट लाइन आपको, दिखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है. ये ब्लू कलर में लाइन दिख रही है, मैंने कहाँ से लाइन पास किया था, दिख रहा है. यस, हाँ सर. हाँ. सर. अब Yes, sir. लाइन जो है, अब आप हर वक्त में लॉन्ग वॉल में या फिर शॉर्ट वॉल में वी आर यूजिंग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब सेंटर टू सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस है वो आप यूज कर रहे हैं. जैसे ये L1, S1, S2, L2, S3, ये जो है सारा जो डिस्टेंसेज है वो डिस्टेंसेज एक्चुअली क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है. मतलब क्या हो रहा है कि ये सेंटर टू सेंटर वाला जो फॉर्मूला है दैट इज लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड्स, वो कहाँ कहाँ पे यूज होगा, जहां से ये सेक्शन लाइन पास होगी. ये सेक्शन लाइन देखो कहाँ कहाँ से पास हो रही है. ठीक है, ये जो क्वांटिटीज से पास होगी उसके लिए वो फॉर्मूला यूज होगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ वाला जो फॉर्मूला है दैट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस लॉन्ग वॉल फॉर विड्थ ऑफ सेक्शन फॉर लॉन्ग वॉल. शॉर्ट वॉल के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस विड्थ ऑफ सेक्शन, जो फॉर्मूला यूज होता है अपने पास नॉर्मली. वो फॉर्मूला अपन कौन से क्वांटिटीज निकालने के लिए यूज करेंगे, देखो सबसे पहले एक्सकेवेशंस के लिए. ठीक है, उसके बाद PCC के लिए, उसके बाद UCR सेकंड स्टेप के लिए, उसके बाद UCR फर्स्ट स्टेप के लिए, उसके बाद DPC के लिए, उसके बाद में ऊपर में देखो, ऊपर में 300 mm थिक वॉल के लिए. उसके ऊपर में आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये RCC स्लैब टोटल रहता है. मतलब ये सारे क्वांटिटीज के लिए वी आर यूजिंग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड्स. ठीक है, वी आर यूजिंग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ऑल दीज क्वांटिटीज. कहाँ से, जहां से ये सेक्शन लाइन जो मेंबर से पास हो रही है, कौन सी मेंबर से पास हो रही है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन से पास हो रही है, PCC से पास हो रही है, UCR सेकंड स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से एंड DPC से भी पास हो रही है. इसलिए मैं DPC में असल मेरा जो था एम DPC का एक्सप्लेन करने का था. ठीक है ना, तो वाई वी आर यूजिंग DPC के लिए L1 और सेंटर सेंटर लेंथ प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि DPC से भी पास हो रही है. ठीक है, डोज एंड विंडोज तो खैर अलग केस है, वो मतलब डायरेक्टली निकलता है उसके क्वांटिटीज. ठीक है, उसके ऊपर में देखो, उसके ऊपर में फिर स्लैब रहता है. तो ये स्लैब के लिए तो टोटल रहता है, इसमें यूज नहीं होता लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड्स. तो दिस क्वांटिटीज वी आर यूजिंग, फॉर दिस क्वांटिटीज वी आर यूजिंग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड्स. ठीक है ना, इसके लिए आप ये DPC के लिए देखो L1 के लिए फार्मूला क्या यूज किया आपने, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन. तो L1 इज इन दिस केस इज 6.8. ठीक है, प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन कितना रहेगा, विड्थ ऑफ सेक्शन फॉर दिस केस इज DPC का विड्थ कितना है 0.5. तो 6.8 प्लस 0.5 कितना होगा, यस 7.3. 7.3 7.3. मीटर्स. ठीक है, 7.3 मीटर्स. ऐसे L1 के कितने नंबर्स हैं, तो देयर आर 2 नंबर्स ऑफ L1 एक का कितना है 7.3. व्हाट अबाउट विड्थ ऑफ DPC 0.5. 0.5. 0.5 sir. 0.5. हाइट ऑफ DPC, हाइट ऑफ Negligible. Negligible नहीं है sir. वी विल नॉट टेक एज हाइट. ठीक है ना, हाइट के कॉलम में मैंने क्या किया,
हैव नॉट टेकन द वैल्यू, कितना आएगा बताओ? 7.3 मीटर स्क्वायर. 3. यस, 7.3 स्क्वायर मीटर्स. लास्ट में 7.3. स्क्वायर मीटर्स भी मेंशन कर दिया आपने, ठीक है ना. हाइट इज नॉट मेंशन. अब सेम वे L2 इज देयर, L2 इज देयर. तो L2 के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा. मैं डायरेक्टली लिखूंगा सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ L2 प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन. तो L2 का लेंथ कितना है बताओ? 4.9 4.9. प्लस विड्थ ऑफ 9. 0.5, कितना होगा? 5.4 5.4. 5.4. मीटर्स. ऐसे L2 के कितने नंबर्स हैं? 1. 1. 1 नंबर. एक का कितना है? 5.4. थिकनेस कितना है? width कितना है? 0.5. 0.5. थिकनेस इज नॉट देयर, थिकनेस नहीं है, यहाँ पे नीला आ जाएगा. ये कितना आएगा बताओ? 2.7. 2.7 स्क्वायर मीटर. यस, 2.7 स्क्वायर मीटर्स. नेक्स्ट, वैसी S1. अब एक ही S1 है अपने पास, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला भी लेता हूँ. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर लेंथ और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस विड्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ ऑफ सेक्शन, ठीक है ना. माइनस विड्थ आएगा क्योंकि शॉर्ट वॉल आप कंसीडर कर रहे हैं. अब S1 का लेंथ कितना था अपने पास बताओ? 3.6. माइनस 3.6. 0.5 अपने पास क्या चल रहा है? विड्थ ऑफ सेक्शन इज 3.1. कितना आएगा? 3.1. 3.1. ऐसे कितने नंबर्स हैं? 3.1. 5. 5. 5 नंबर्स है. एक का 3.1 है, 0.5 उसका विड्थ है. कितना आएगा टोटल बताओ? ये 7.7. 7.75. स्क्वायर ठीक मीटर. है. तो डीपीसी के क्वांटिटीज निकाली आपने सबने. डीपीसी की क्वांटिटीज आ गए समझ में. तो डीपीसी में क्या करेंगे? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से ही निकालेंगे. आप जो प्रोसेस यूज करते थे पीसीसी के लिए या फिर यूसीआर फर्स्ट स्टेप के लिए या फिर यूसीआर सेकंड स्टेप के लिए, वही प्रोसीजर आप डीपीसी के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना. वही प्रोसीजर से आप डीपीसी का निकालेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देयर विल नॉट बी एनी हाइट फॉर डीपीसी, ठीक है ना. सिर्फ ये नील लिखना भूलना नहीं आपको. डैश लिखो, नील लिखो, चलेगा. यहाँ पे मगर वैल्यूज कुछ नहीं होना, डैश मार के भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है. और यहाँ पे यूनिट्स में लिखते वक्त में लिखना है कि स्क्वायर मीटर्स. और इम्पोर्टेंट है सबसे पहले कि डीपीसी जो है वो इट हैज बीन नॉट, देयर विल नॉट बी एनी डीपीसी बिलो डोर्स एंड विंडोज. डोर्स और विंडोज के नीचे में डीपीसी अप्लाई नहीं होता है. ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना. आप अगर आप साइड पे देखते होगे तो डीपीसी का उतना लेयर जो रहता है जहाँ पे डोर्स और विंडोज लगते हैं, उसके नीचे में डीपीसी नहीं होता. There will not be any DPC. It has been laid below the doors and windows. समझ में आ रही मेरी बात? कि डोर्स और विंडोज के नीचे में डीपीसी नहीं होगा. डोर्स एंड विंडोज के नीचे में डीपीसी नहीं लेंगे आप, ठीक है. तो इसके लिए अपने को डिडक्शंस इज देयर. डिडक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, ठीक है ना. डिडक्शंस फॉर ओनली डोर्स, विंडोज नहीं, क्योंकि डीपीसी ग्राउंड लेवल पे होता है. तो डोर्स के लिए आपको डिडक्शन करना है. तो हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन दिस फिगर? फिगर में देखो, किचन में, किचन बेडरूम, किचन, 3 नंबर्स आर देयर. 3. 3 नंबर्स ऑफ डोर्स आर देयर. तो 3 नंबर्स के आपको डोर्स का डिडक्शन करना पड़ेगा. अब डिडक्शन करते वक्त क्या डिडक्ट करेंगे आप बताओ? क्या लेंगे? वेदर वी विल टेक दिस. अब यहाँ पे डायमेंशन देखो डोर का दिया हुआ है, छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे. D is equals to 1 by 2.1 and W is equals to 1.1 by 1.3. So we have taken as D as 1 by 2.1. What this 1 indicates? Width of the door. Yes, width of the door. And 2.1 is the height of door. तो मेरे पास हाइट का यूज होगा कि विड्थ का यूज होगा कैलकुलेशंस के लिए? Width. Width का नीचे की तरफ है ना, क्योंकि मेरे पास देखो ये प्लान इटसेल्फ बता रहा है, देखा ना. स्पेस थोड़ी सी छुट्टी दिख रही है यहाँ पे, डी लिखते वक्त में स्पेस छुट्टी है. तो ये एज समझ के चलो कि यहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड नहीं हो रहा है. तो मेरे लिए विड्थ इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू हाइट, ठीक है. तो अब मैं कंसिडर करूंगा यहाँ पे 3 नंबर्स. अब विड्थ इन द सेंस लेंथ ऑफ डोर. एक डोर की लेंथ कितनी है? 1.0. ऐसे कितने डोर से? 3 नंबर्स ऑफ डोर आर देयर. अब विड्थ के लाइन में क्या लिखूंगा मैं? विड्थ के लाइन में क्या लिखूंगा? Anil. अच्छा, हाइट में क्या लिखूंगा? यस, हाइट में क्या लिखूंगा फिर? हाइट में 2.1 लिखूंगा या फिर हाइट ऑफ डीपीसी लिखूंगा? बट हाइट ऑफ डीपीसी इज नॉट देयर. देन सर वॉल की थिकनेस लिखोगे सर.
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थिकनेस लिखेंगे, थिकनेस इन द सेंस अब आप काम किसका कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट डीपीसी, ठीक है ना। और डीपीसी का जो विड्थ था वही विड्थ में आपका डिडक्शन विड्थ माइनस होगा, मतलब सेम विड्थ विल बी देयर। जो काम और जो चीज आप कर रहे हैं उसी का विड्थ आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आप अब आपका विड्थ जो था कितना था 500 का, तो इतना पूरा आपको डोर्स के नीचे में आपको माइनस करना है, पूरा का पूरा विड्थ आपको माइनस करना है, पूरा का पूरा विड्थ आपको माइनस करना है। तो जो विड्थ आप ले रहे थे डीपीसी का वही विड्थ यहाँ पे लेंगे आप, ठीक है, वही विड्थ लेंगे यहाँ पे। हाइट आपका नहीं रहेगा क्योंकि डीपीसी का कोई नहीं हाइट नहीं रहता है, ठीक है ना। देयर विल नॉट बी एनी हाइट फॉर डीपीसी, नील जैसे कि वैसे रहेगा। बट ये काम क्या है कि 0.5 आप कर रहे थे तो ये 0.5 डिडक्शंस में भी 0.5 ही होगा। और लेंथ ऑफ डोर क्या रहेगा, ये लेंथ ऑफ डोर जो गिवन है आपके पास है ना, लेंथ ऑफ डोर सब तरफ से, ठीक है। कैसे कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है। तो ये लाइन क्लियर हो गई कि डिडक्शन वाली लाइन, डिडक्शन वाली लाइन क्लियर करेगा, मतलब ये समझ में आ रहा है कि डिडक्शंस वाली लाइन कंसेप्ट क्लियर हुआ सबके लिए। यस यस सर। हाउ वी हैव टेकन एज Yes, 1 sir. लेंथ और 0.5 कैसे लिए ये समझ में आया। 3 नंबर्स तो Yes, sir. है ना, 3 नंबर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 3 नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। बट लेंथ कैसे लिए, तो लेंथ ऑफ डोर है अपने पास 1 मीटर। विड्थ कैसे लिए, क्योंकि आप विड्थ डीपीसी का यूज हो रहा है तो डीपीसी में माइनस होगा, है ना। जो चीज पूछी जा रही है वही चीज माइनस होगी, है ना। तो पूछी जा रही है 0.5 की तो माइनस भी 0.5 ही होगा। और हाइट तो रहता ही नहीं है डीपीसी का, तो मतलब ये 1.5 इज माइनस, वी विल हैव दिस एज माइनस। यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे। इसका एडिशन बताओ तो ऊपर वाले का, ऊपर वाले का एडिशन माइनस छोड़ के बताओ कितना आएगा। 17.75. 17.75, ठीक है। अब लास्ट आप लिखेंगे स्टेटमेंट एज टोटल क्वांटिटी ऑफ डीपीसी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल क्वांटिटी ऑफ डीपीसी दैट इज इक्वल्स टू दिस 16.25. 16.25, 25. 16.2, ठीक है। ये फाइनल क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब 1.5 स्क्वायर मीटर्स का डीपीसी डोर्स में से डोर्स के लिए डिडक्शन करना पड़ेगा। अगर आपने 1.5 डिडक्शन नहीं करे और टोटल 17.75 ले लिया, दैट मींस द क्वांटिटी ऑफ डीपीसी इज रॉन्ग, तो क्वांटिटी ऑफ डीपीसी इज रॉन्ग, ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डीपीसी इज 16.65, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं अपन, इट इज 16.25, ठीक है। सबके लिए समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है। चलो, क्लास थोड़ा सा लेंदी हो गया था लेक्चर्स, ठीक है। तो बट ये इंपॉर्टेंट था कि डीपीसी में डिडक्शंस यूज हो रहा है, ठीक है। ये डिडक्शंस वाले डिडक्शन आगे भी यूज होंगे, हाँ, तो डिडक्शंस वाले कंसेप्ट अपन ने यूज किए थे आज के लेक्चर में। यस संदेश, सर विंडोज के डिडक्शन नहीं करते क्या? डीपीसी अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, एट ग्राउंड लेवल, अबव ग्राउंड लेवल डीपीसी है। डीपीसी देखो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेक्शन देखना है। डीपीसी दिख रहा कहाँ है, ये लेयर में दिख रहा है, नीचे में। विंडो के नीचे डीपीसी दिख रहा है क्या डबल लाइन में, नहीं है, विंडो के नीचे नहीं है। मतलब डीपीसी विल नॉट बी अप्लाइड एट द विंडो लेवल, ठीक है ना, इट विल बी अप्लाइड एट द डोर लेवल, नीचे में, यहाँ पे जहाँ पे दिख रहा है वहीं से डिडक्शन होगा आपका। जो चीज दिख रही है सेक्शंस में उसी का कैलकुलेशन आपको करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो डीपीसी इट इज इन द लाइन ऑफ मोजाइक टाइल फ्लोरिंग, मतलब टाइल के फ्लोरिंग के लाइन में आपके रूम के लेवल पे, प्लिंथ लेवल पे डीपीसी विल बी अप्लाइड, प्लिंथ लेवल पे डीपीसी रहेगा। सील लेवल पे डीपीसी नहीं होता है, सील लेवल है, विंडो बोल रहे ना आप, विंडो के नीचे में वो सील लेवल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये प्लिंथ लेवल पे डीपीसी इज अप्लाइड और उसी लेवल पे डोर भी फिट होते हैं, ठीक है। इसलिए अपन ने डोर माइनस किया। डोर क्यों माइनस किए, क्योंकि वही लेवल पे डोर भी फिक्स होती है, ठीक है ना, ठीक है। इज दैट क्लियर, यस एवरीवन, इज दैट क्लियर। यस सर। Yes, sir. वही लेवल पे डोर होने की वजह से वी हैव डिडक्टेड 3 नंबर्स ऑफ डोर्स, ठीक है ना। 3 नंबर्स ऑफ डोर्स अपन ने डिडक्शन क्यों किए, क्योंकि वही लेवल पे डोर्स भी अप्लाइड होते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक एज पर IS 1200 में वी हैव टू डिडक्ट द क्वांटिटीज ऑफ डीपीसी, है ना। डोर्स एंड विंडोज के लिए डीपीसी की क्वांटिटी क्या होगी, माइनस होते जाएगी। तो सिंपल है, बट वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना। अगर वो किसी ने माइनस नहीं किया दैट मीन्स द कैलकुलेशंस विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो अटेंडेंस ले लेता मैं फास्ट में।
चलो अटेंडेंस बता दो 1 to 10. 1 to 10. Roll number 3. 3. Yes. Sir, roll number 10. 10. Sir, roll number 6. 6. और कोई? 3, 6, 10. बस इतने ही प्रेजेंट है. 11 to 20. Roll number 11. 11. Sir, 13. 13. 15. 15. Sir, 16. 16. 19. 17. 17. 20. 20. Okay. 21 to 30. 21 to 30. Sir, 24. 24. 20. 22. 31 to 40. Sir, 31. 31. 34. 34. 34. और कोई? 31, 34. 41 to 50. Sir, roll number 5050. 50, 50. 51 to 60. 56, sir. 58. 56, 58. 60. 60. 58 भी हो गया, 60 भी हो गया, 56 भी हो गया है. 61 to last. Roll number 67. 67, 68. 65, sir. 71. 65, 71. 70. 70. Sir, 74. 74. ठीक है. 65 हुआ, 66, 67, 67 के बाद है 68, देन 70, 71 और 74. इसके अलावा कोई प्रेजेंट है? चलो ठीक है. तो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. यस. So next lecture में we will see some more problems for this, some more quantities we will try to complete, है ना. और भी quantities अपन next lectures में we will try to complete. ठीक है. तो thank you everyone. Yes, thank sir. you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.